اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو شب معراج کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات 27 رجب ہے، جس رات میں حضور اکرم سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں فرمائی ہیں۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر آپ اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف کیا۔ حضرت جبرائیل امین نے اس پیش و پس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پولیس راہ سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی گئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت کی فکر نہ کیجئے، ہم آپ کی امت کو پولیس راہ سے اس طرح گزاریں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھاما، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدائیں آسمان کو گونجنے لگیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی رفتار تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی اقامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی۔
बव्वाब पहले से मुंतजिर था। आवाज़ आई, कौन है? जिब्राईल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। आवाज़ आई, आपके साथ कौन है? जवाब आया, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज की रात उन्हें आसमानों पर पजीराई बख्शी जाएगी। आसमान का दरवाज़ा खुल गया और पूछने वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में सलाम अर्ज़ की, सादत हासिल की, मरहबा या सैयदी या मुर्शिदी मरहबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटकाया। आवाज़ आई, कौन? जिब्राईल अमीन ने कहा, जिब्राईल। फिर कहा, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा, हाँ। आवाज़ आई, खुशामदीद, कितना अच्छा आने वाला है, आया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया कि ये आपके जलील क़दर फ़र्जंद हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं। यही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अपने अजीम फ़र्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्शे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बव्वाब ने दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोला। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहदात नूरानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कराई गई। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज तय करते हुए छठे आसमान पर पहुँचे और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मान मुक़द्दस अश्कबार हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त को देख कर रश्क के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़ुबान अक्सर से बेख्तियार निकला कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर कि ये वो बरगुज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया, मेरी उम्मत पर जिसे बुज़ुर्गी अता हुई। ये वही रसूल बरहक हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेहमान ज़ी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। फिर मज़ीद सफ़र शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए, जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खलक के दरमियान हद फासल को की हैसियत रखता है। नीचे जाने वाले यहाँ आकर रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मुकाम पर के करीब आपको जन्नत का मुशाहदा कराया गया। आपने देखा अल्लाह ने अपने सालिहा बंदों के लिए क्या कुछ मुहैया कर रखा है, जो किसी आँख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में इसका तसव्वुर तक गुजर सकता था। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुँचे तो बारगाह जलाल सामने थी। हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, हर रोज़ 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई। नंबर 2 पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तालीम फरमाई गई। नंबर 3 पर शिरक के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक़ में 1 नेकी लिख दी जाती है और जब वो इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो 1 ही बुराई लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लेकर वापसी पर नीचे उतरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने रवादाद सुनकर कहा, मैं बनी इसराइल का तजर्बा रखता हूँ, सख्त तजर्बा रखता हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि आपकी उम्मत 50 नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकती। जाइए और कमी के लिए अर्ज़ कीजिए। आप आ गए और अल्लाह जल्ला शानहू से 10 नमाजें कम कर दी।
पलटे तो हज़रत मूसा ने फिर वही बात की। अब उनके कहने पर आप बार बार ऊपर जाते रहे और हर बार 10 नमाजें कम होती जा रही थीं। आखिर 5 नमाजों की फ़र्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 50 के बराबर हैं। इसी के सफ़र में आप उसी सीढ़ी से उतर कर बैतुल मुक़द्दस आए। फिर यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आपने उनको नमाज पढ़ाई जो गालबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँचे। सुबह सबसे पहले आपने अपनी चचा ज़ाद बहन उम्मे हानी को ये रवादात सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया। उन्होंने आपकी चादर पकड़ ली। कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाइएगा, वरना लोग आपका मजाक उड़ाने का एक और शोशा हाथ आ जाएगा। मगर ये आप ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं ज़रूर बयान करूँगा। हरम काबा में पहुँचे तो अबू जहल से आमना सामना हुआ। उसने कहा, कोई ताज़ा खबर? फरमाया, हाँ। पूछ क्या? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था, जहाँ बैतुल मुक़द्दस रातों रात होकर वापस आए हो और सुबह यहाँ मौजूद हो? फरमाया, हाँ। कहा, कौम को जमा करो, सबके सामने यही बात कहूँगा। फरमाया, बेशक। अबू जहल ने आवाज़ें दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा, आपने सबके सामने पूरा किस्सा बयान किया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो महीना का सफ़र 2 महीने का सफ़र एक रात में नामुमकिन, महाल। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया कि तुम दीवाने हो गए हो। आनन फानन ये खबरें तमाम मक्का में फैलीं। बहुत से मुसलमानों को सुनकर इस्लाम से फिर गए। लोग इस उम्मीद पर हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम के पास गए, ये मोहम्मद के दस्ते रास्त हैं, फिर जाएं तो इस तहरीक की जान ही निकल जाए। उन्होंने ये किस्सा सुनकर कहा, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान किया तो ज़रूर सच होगा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं, मैं उनकी तस्दीक करता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर हरम काबा में आए। रसूल अल्लाह मौजूद थे और हंसी उड़ाने वाला मजमा भी। पूछा, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया? जवाब दिया, हाँ। कहा, बैतुल मुक़द्दस मेरा देखा हुआ है, आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फ़ौरन सारा नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ इस तरह बयान की गोया बैतुल मुक़द्दस आपके सामने मौजूद है और देख कर इसकी हकीकत बता रहे हैं। हज़रत अबू बकर की इस तदबीर को झुटलाने वालों को एक शदीद ज़रब लगी। वहाँ पर बकसरत लोग ऐसे मौजूद थे जो तजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस जाते रहते। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा बिल्कुल सही है। अब लोग आपके बयान का मज़ीद सबूत मांगने लगे। फरमाया, जाते हुए मैं फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर काफ़िले पर से गुज़रा जिसके साथ ये सामान था। काफ़िला वालों की ऊँट बुराक से भिड़ के एक ऊँट फ़लाँ वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफ़िले वालों को इसका पता दिया। वापसी में फ़लाँ वादी में फ़लाँ कबीले का काफ़िला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और उनकी इस बात की अलामत छोड़ दी कि मैं उससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और पते आपने दिए जो बाद में काफ़िलों की तस्दीक हो गई। इस तरह ज़ुबानें बंद हो गई, मगर दिल यही सोचते रहे, ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर कराई, जहन्नुम की सैर कराई। जब जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने हूरों को भी देखा। एक हूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कुछ अनायत फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, तुम्हें मैं अपना भलाल देता हूँ। तो हूर ने माथे पर शिकने लाते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए यही रह गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, पहले मुझे अपने बिलाल से तो पूछ लेने दो, वो तुम्हें कबूल करता भी है या नहीं।